Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स से, that is 6 November 2025. Let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है कि who has been elected as New York's first Muslim and South Asian origin mayor? So this can be a simple one-liner questions जो आपको ALET में आते हैं. The answer to this is Zohran Mamdani, who is a 34-year-old youngest ever mayor according as per from 1917 onwards if you talk about, and इन्होंने कोट भी किया था जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डायनेस्टी को इन हिज विनिंग स्पीच. हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज जोरान ममदानी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इंडियन स्टेट प्लान्स टू रीइंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इट्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सिस्टम? सो लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस या AI की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो याद रखना कि कर्नाटका हैज डिसाइडेड टू डू दैट, इसीलिए आंसर टू द क्वेश्चन इज C. Proceeding to question number 3, which Indian state has launched its first multimodal transport app integrating metro, water metro, bus, taxi or something? Now, this I have done in my previous daily news analysis के वीडियो में. So let me see if you remember it. The answer to this is Kerala. Now याद रखना कि बहुत सारी cities ने किया है, चेन्नई वन है, मुंबई वन है, but this is mainly state wise. So that's why remember पहला ऐसा state ने जो एक multimodal app किया है for the transport within the country, within the state. The answer is Kerala. Question number 4, which of the following is not an element of criminal contempt? Criminal contempt is when you are talking or scandalizing the court, prejudicing, interfering in the administration of court. Okay, but अगर आप disobey करते हो order को तो उसको बोलते हैं civil contempt. इसको कहते हैं civil contempt. So here the answer to the question 4 is C. Question number 5, which organization releases the QS World Rankings Asia? तो इसका आंसर है QS का फुल फॉर्म है Quacquarelli Symonds. Okay, this is the London based analyst जो रैंकिंग देता है यूनिवर्सिटीज को, इसीलिए इसका आंसर है B. Question number 6, which Indian institute ranked highest in the QS रैंकिंग्स? इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करें, ओके, इंडिया में हम देखते हैं IIT दिल्ली सबसे ज्यादा टॉप पे है एज कंपेयर टू द अदर IITs एंड IISCs दैट वी हैव. तो IIT दिल्ली इज द आंसर. बट फिर भी हम देखते हैं IIT दिल्ली इज आल्सो कम डाउन, 59th पोजीशन पे आया है. लास्ट ईयर इट वाज ऑन 44th पोजीशन. ओके, कमिंग टू अंडरस्टैंड which country had the highest number of universities in the QS rankings? हम देखते हैं चाइना हैज द मोस्ट. ओके, इन्होंने डोमिनेट किया है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है. इंडिया के यूनिवर्सिटीज इंक्रीज हुए हैं इन द रैंकिंग्स, बट ओवरऑल वी आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल. हमारी सिर्फ 7 यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में है और एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं है. So this was with regard to the QS rankings. Proceeding to question number 8, who is the owner of the Starlink satellite communications? The answer is Elon Musk. Okay, ये एक प्रोजेक्ट है SpaceX का, and the answer to the question is B, Elon Musk. And why it is on the news? It is because हम देखते हैं कि ये एक इंडियन स्टेट के साथ कोलैबोरेट किया है to provide satellite based internet connectivity. Which state is that? The answer to the question is Maharashtra. So recently they had a meeting with the chief minister of Maharashtra, that is Devendra Fadnavis, and उन्होंने कहा है कि वो remote and unserved regions को connectivity पहुंचाएंगे. Question number 10, Starlink operates in which type of orbit? कौन से ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं Starlink के? इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ताकि सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी हो, स्पीड ज्यादा हो, लेटेंसी कम हो. दैट इज व्हाट दे होप टू डू. क्वेश्चन नंबर 11, कौन से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मध्य प्रदेश में इज डेवलप्ड एज द थर्ड होम ऑफ चीताज? हम देखते हैं कूना हो गया है, गांधी सागर वाज द सेकेंड वन, and the third one is Nora Dehi Wildlife Sanctuary. तो आंसर इसका है B. But we also saw the problem to have Nora Dehi because वहां पे already tigers हैं, 25 tigers हैं. So that was the problem that we saw in today's news article. Next is FATF जो है, it is primarily associated with combating what? FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो ये हेल्प करता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के लिए. तो इसीलिए इसका आंसर है
12B, that is मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस। हाँ, इंडिया AI मिशन, इंडिया AI गाइडलाइंस, एनीथिंग रिलेटेड टू AI, कौन सी मिनिस्ट्री हेल्प करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, हु चेयर्ड द पैनल दैट ड्राफ्टेड द इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस। ये IIT मद्रास से जुड़े हुए हैं, इनका नाम है बलरमन रविंद्रन, जिन्होंने ये गाइडलाइंस को चेयर किया है, इनको पैनल को हेड किया है। क्वेश्चन नंबर 15, द न्यू रिपोर्ट बाकू टू बेलम रोड मैप टू 1.33, ये कौन से कॉन्फ्रेंस के पहले रिलीज किया गया है? तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कौन सा कॉप। द नंबर ऑफ द कॉप इज कॉप 30। यहाँ पे याद रखना है कि बाकू जो हुआ था समिट बाकू, वो कॉप 29 था जो अजरबैजान का है, और कॉप 30 जो है इट इज बेलम, ठीक है, जो ब्राजील में है। सो बाकू टू बेलम टू 1.33, और 1.33 क्या है? 1.3 ट्रिलियन। ओके, जो पर ईयर हम पैसे देंगे या फंड करेंगे फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज बाय 2035, फ्रॉम 2035 हर साल इतना पैसा हम लेके आएंगे। सो हाउ मच इज द एनुअल फाइनेंस हैव डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया? डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है 300 बिलियन। ओके, 300 बिलियन। प्रेजेंटली कितना है? 100 बिलियन है, और डेवलप्ड कंट्रीज ने 300 किया है, और ये डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं। सो रिमेंबर वंस अगेन, डेवलपिंग कंट्रीज चाहती है 1.3 ट्रिलियन, डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है 300 बिलियन। तो आंसर क्या है इसका? 300 बिलियन, बी। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द पेरिस अग्रीमेंट कितने साल के बाद ये टारगेट्स को रिवाइज करना चाहिए? द आंसर इज आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू द पेरिस अग्रीमेंट। 5 साल के बाद रिवाइज करना चाहिए तुम्हारे टारगेट्स, ये कहता है अग्रीमेंट। तो आंसर इसका है बी। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी बॉडी ने रिलीज किया है एसेट रिकवरी गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस? दिस वाज रिसेंटली गिवन बाय द FATF एंड देयरफॉर आंसर टू द क्वेश्चन इज सी। Who currently host the FATF presidency? A very interesting question. यहाँ पे याद रखना है कि मेक्सिको होस्ट करता है प्रेसिडेंसी, जो है टर्म है 2 years। FATF आया था 1989 में G7 समिट के दौरान, और हम देखते हैं इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ओके, प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एग्जांपल्स दिए गए थे FATF के रिपोर्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया कि FATF कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एंड देयरफॉर योर आंसर इज बी। So that is all with regard to our 20 GK questions. बहुत सारे interesting questions देखे थे. If you have any questions, do write to us in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.